Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to see Taylor's theorem for a function of two variables. Okay, so this is actually the standard result of Taylor's theorem. F of x plus h y plus k is equal to f of x y plus h dou by dou x plus k dou by dou y f plus 1 upon 2 factorial h dou by dou x plus k dou by dou y whole square f plus so on. So, this is the expansion of function in the powers of h and k. Okay. If you see below, taking x equal to a and y equal to b, अगर हम यहाँ पर x और y को a और b में replace करेंगे, तो that will be your Taylor series expansion. Okay. And if you replace here h by x minus a and k by y minus b, then this will be your Taylor's expansion. Now see what is the difference here. When you replace your h by x minus a and k by y minus b in this series, then you get the series expansion in powers of x minus a and y minus b. This is most asked series in exam. Okay, ये series पर maximum questions पूछे जाते हैं. Okay, so let's solve the example on it. How you are going to solve the examples on Taylor series? See, expand x square y plus 3y minus 2 in powers of x minus 1 and y plus 2. राइट, अब जब यहाँ पर ये टाइप का एक्सपांशन अगर आपको पूछा गया है तो आपको 100% यहाँ पर टेलर सीरीज यूज करनी है और टेलर सीरीज का x माइनस ए और y माइनस बी का एक्सपांशन यूज करना है. ओके, इन पावर्स ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हियर गिवन फंक्शन. What is it? F of xy is equals to x square y plus 3y minus 2. Now by Taylor's theorem, we have the expansion of function f of xy in the form, just let me write here expansion, f of ab plus in bracket x minus a fx plus y minus b fy plus 1 upon 2 factorial x minus a whole square fxx plus 2x minus a into y minus b fxy plus y minus b whole square fyy plus 1 upon 3 factorial x minus a whole cube fxx plus 3x minus a whole square y minus b fxxy plus 3x minus a y minus b whole square fxyy plus y minus b whole cube fyy plus so on. You can continue in this manner. This is the Taylor's expansion in powers of x minus a y minus b. तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब आप एक्सपांशन लिखते हो तो ये देखो, ये ब्रैकेट का फर्स्ट पावर है, ये x माइनस ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है और ये a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में. सिर्फ इतना ध्यान में रखो. अब x माइनस ए के पावर में और y माइनस बी के पावर में ये सीरीज आपको लिखनी है. थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक यूज करके आपको इस सीरीज को ध्यान में रखना है. ओके, तो यहाँ पर हमें ये सीरीज एक्सपांशन फाइंड करना है और जब आप फाइंड करोगे तो आपको ये 3rd डिग्री तक सॉल्व करना है. ओके, और अगर पूछे तो आपको 4th डिग्री के लिए लिखना है. इसी तरीके से आप x प्लस ए ब्रैकेट रेज़ टू 4 का फॉर्मूला यूज करके आगे का एक्सपांशन लिख सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर
अगर ये टेलर सीरीज एक्सपांशन हमें फाइंड करना है तो हमें पहले ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी होंगी, fx, fy, fxx, fxy, fyy. These are what derivatives of function. First order derivative, this is second order derivative, this is third order derivative. These all derivatives we have to find here. Okay, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे given function that is fxy equals to x square y प्लस 3y माइनस 2. ओके, अब यहाँ पर हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसे हम लिखेंगे fx. सो हियर व्हाट इज इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देन? विथ रिस्पेक्ट टू x it is 2xy and here x is not present, so its derivative is 0. Then second order derivative fxx, that is 2y, and third order derivative with respect to x. अब यहाँ पर x है ही नहीं, यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका हो गया 0. ओके, अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू y. दिस इज योर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, इट इज x स्क्वायर प्लस 3. अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे फिर से विथ रिस्पेक्ट टू y, पर यहाँ पर y प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा 0. अभी हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. अब ये कांस्टेंट है, 0 है, तो डेफिनेटली इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 होगा, राइट. इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है fxy की. ओके, अब fxy ऑलरेडी आपका यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसे विथ रिस्पेक्ट टू y कर दो तो ये हो जाएगा आपका fxy. ओके, देन हमें यहाँ पर फाइंड करना है fxxy. अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमने विथ रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव फाइंड किया है, इसे फिर से विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 2. एंड देन एट लास्ट fxyy. ओके, अब यहाँ पर देखो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है, इसे विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करोगे तो डेफिनेटली आंसर 0 ही आने वाला है, राइट. तो ये हो गए आपके सारे डेरिवेटिव्स. अब यहाँ पर आपको वैल्यू यूज करनी है, राइट. यहाँ पर देखो ये इसे आपको कंपेयर करना है x माइनस ए एंड y माइनस बी के साथ. अगर मैं इसे x माइनस ए और y माइनस बी के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिलेगी 1 और b की वैल्यू मिलेगी -2. ये वैल्यूज हमें यहाँ ये फंक्शंस में यूज करनी है, यहाँ पर यूज करके इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके, अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू, अब x यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ना ये हमें एट ए बी फाइंड करनी है, राइट. अब हमने डेरिवेटिव्स तो फाइंड कर लिए, अब एट पॉइंट ए बी यानी कि a और b क्या है हमारा 1 और -2, तो हमें एट पॉइंट 1 एंड -2 यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम ये जो x होंगे इन्हें 1 और -2 से रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है. तो यहाँ पर जब हम x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, y की वैल्यू -2 है तो ये -2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 ये -6 होगा एंड -2, राइट. तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिलती है -10. सिमिलरली यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू 1 यूज करनी है, y की -2, तो ये 2 इंटू 1 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -4. देन y -2, सो 2 इंटू -2 ये हो जाएगा फिर से -4. अब ये वैल्यूज तो ऑलरेडी 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर देखो x की वैल्यू आपको 1 यूज करनी है, तो 1 + 3 ये हो जाएगा 4. अब ये सारी वैल्यूज आपके ऑलरेडी 0 है, सो एट पॉइंट दैट विल बी ऑल्सो 0. देन 2x, 2 इंटू 1 यानी कि 2. अब ये कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाली, एट पॉइंट 1 -2 एंड हियर ऑल्सो इट इज 0. सो ये हो गई आपकी सारी वैल्यूज डेरिवेटिव्स की, और ये सारी वैल्यूज अब हमें ये एक्सपांशन में पुट करनी है. ओके, सो अब यहाँ पर हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो एक्सपांशन है फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, देखिए f(xy) इज इक्वल्स टू f(ab) यानी कि दिस वैल्यू दैट इज व्हाट -10 प्लस x माइनस ए fx. अब x माइनस ए यानी कि x -1, राइट.
and fx यानी कि दिस वैल्यू -4, ओके, प्लस y माइनस b यानी कि b की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस +2 इंटू fy की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर देखो, दैट इज 4, प्लस 1/2 फैक्टोरियल in bracket x minus 1 whole square, then fxx, what is fxx? -4, write down here, plus 2 in bracket x minus 1 y plus 2 fxy. अब fxy की वैल्यू क्या है 2, write down here 2, then plus y minus b whole square यानी कि y plus 2 whole square fyy. What is fyy? That is 0, so it is going to be 0, plus अभी ये हो गया आपका एक ब्रैकेट कंप्लीट. अभी नेक्स्ट हमें लिखना है 1/3 फैक्टोरियल, ओके. तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 क्यूब f(x). अब f(x) तो आपका 0 है, सो दिस इज गोइंग टू बी 0, प्लस 3 x minus 1 square y minus b fxxy. Where is fxxy? Here it is. इसकी वैल्यू आपकी है 2, प्लस 3x minus 1 y plus 2. अब यहाँ पे y minus 2 यानी कि ये मैंने लिखना चाहिए था, लेट मी करेक्ट इट, ये y plus 2 है, ओके. देन y plus 2. अब यहाँ पर देखो हमें लिखनी है वैल्यू fxy की, सो हियर इट शुड बी मस्ट बी स्क्वायर एंड fxy तो 0 है यानी कि ये टर्म 0 होने वाली है. देन आगे हमें लिखना है प्लस, यहाँ पे देखिए नीचे हमें इसे कंप्लीट करना है क्यूब के साथ, y plus 2 होल क्यूब, देन fyy इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, प्लस सो ऑन. यानी कि अगर आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपका जो सीरीज एक्सपांशन है दैट इज व्हाट, -10 प्लस, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये -4 की वजह से है ना, ये टर्म नेगेटिव हो जा रही है. -4x minus 1 प्लस 4y plus 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल. यहाँ पे क्या बचा है देखो, दैट इज -4x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 4x minus 1 y plus 2 एंड अब y plus 2 होल स्क्वायर 0 हो जाएगा. देन प्लस यहाँ पे ये टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म आपकी होगी 1/3 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट 3 2 6 x minus 1 whole square y plus 2, then this value is going to be 0 and also this is going to be 0, यानी कि यहाँ पर ही आपका ब्रैकेट कंप्लीट हो गया. So this is your series expansion, required series expansion in powers of x minus a and y minus b, that is x minus 1 and y plus 2, right? So this is how you are going to use the Taylor series expansion whenever you are asked to find the expansion in powers of x minus a, y minus b. Okay. Now next example we are going to solve here this one. अब यहाँ पर फंक्शन आपको दिया है और यहाँ पे आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है 0.9 1.2 के लिए, ओके. तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टेलर सीरीज एक्सपांशन यूज कर सकते हैं, ओके. तो दैट वाज दिस वन, f of x plus h y plus k इक्वल्स टू, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं टेलर सीरीज एक्सपांशन, दैट इज f of x y प्लस h इंटू fx प्लस k इंटू fy प्लस 1/2 फैक्टोरियल in bracket h square fxx plus 2hk
fxy plus, just a minute, it should be k square fyy plus 1/3 factorial h cube fxxx plus 3h square k fxxy plus 3hk square fxyy plus k cube fyy plus so on. Okay, so this is again a standard टेलर सीरीज एक्सपेंशन दैट वी कैन यूज, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बताया था. ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये टेलर सीरीज हम यहाँ पर यूज करेंगे. अगर सपोज आपको वैल्यूज दी है, वो वैल्यूज के लिए आपको फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर. तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे आपको लिखना है. अब ये जो 0.9 है ना, अब ये जो h और k होता है ये वेरी स्मॉल होता है, तो आपको 0.9 को एडजस्ट करके लिखना है. कैसे लिख सकते हैं हम? 1 माइनस 0.1 है ना, और 1.2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 0.2, यानी कि आपकी h की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर यहाँ पर? माइनस 0.1 और k की वैल्यू 0.2. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम्पल नाउ. ओके, so that is equals to now first of all we are going to write here function. Just a minute. तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे. what is it? tan inverse xy. ओके, तो यहाँ पर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस xy whole square into derivative of xy with respect to x, that is y. Then इसका हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है with respect to x. अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में तो x है नहीं, हमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा. सो दैट विल बी -1/1 प्लस xy whole square bracket square into y into derivative of this one, it is 2xy with respect to x, it is y. अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका डेरिवेटिव होगा -2 xy क्यूब अपॉन 1 प्लस xy होल स्क्वायर. ओके, ये हो गया आपकी fxx की वैल्यू. अब ये जो है ये आप सेकेंड डेरिवेटिव तक भी इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, और अगर हमें थर्ड डेसिमल तक कैलकुलेट करना है तो उसके हिसाब से आपको वैल्यूज चूज करनी है. ओके, तो अभी ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मैं इसे थोड़ा स्किप करती हूँ. हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक. इसके आगे आप खुद ट्राई कर सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ पर इसके ट्रिपल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं. ओके, अब यहाँ पर मैं इसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करती हूँ. तो विथ रिस्पेक्ट टू y इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस xy होल स्क्वायर इंटू x. एंड इफ आई डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू y अगेन, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में x है, y नहीं है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस xy होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव 2xy इंटू with respect to y, it is x. So here you will get the value -2x cube y upon 1 plus xy whole square bracket square. Okay, so I hope you understood how we find these derivatives. अब यहाँ पर एक लास्ट डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है fxy मिक्स डेरिवेटिव. अब आप देख सकते हो यहाँ पर
ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने फाइंड किया, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो वाई यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो हमें u बाई वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ओके। और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इट इज 1 माइनस, अभी आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट होगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड देन डिवाइड योर डिनोमिनेटर स्क्वायर, ओके। तो ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर है, जस्ट अ मिनट, दिस वन, राइट, होल स्क्वायर, ओके। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अगर हमने इसे कंपेयर किया, जस्ट अ मिनट, ये जो आपकी वैल्यू है इसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपकी x की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू -0.1 है और y की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 0.2 है, राइट। तो इसके हिसाब से हमें x1 और y1 पुट करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं x और y को 1 पुट कर दूँ तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। सो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कब होता है, जब एंगल π/4 हो, राइट। अब यहाँ पर देखो y को 1 पुट कर दिया डिनोमिनेटर में, 1 into 1 1 square that is 1 and 1 plus 1 it is 2, राइट। अब यहाँ पर देखो x और y को 1 पुट कर देते हैं तो ये -2 और ये 1 plus 1 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये हो जाएगा -1/2, ओके। एंड हियर 1 upon 1 plus 1 it is 2, then -2 upon 1 plus 1 whole square that is 4, so it is -1/2 and this is equals to 1 plus 1 minus ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 plus 1 2 होल स्क्वायर, सो 4, तो ये हो जाएगा -1/4, ओके। अब ये सारी वैल्यूज हमें ये एक्सपांशन में पुट करनी है, तो यहाँ पे देखिए एक्सपांशन क्या हो जाएगा, f of x plus h यानी कि 0.9 एंड y plus k यानी कि 1.2 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी फंक्शन की f of x y। अब यहाँ पर देखो f of x y हमारा है π/4, ओके। देन प्लस h क्या है, -0.1 एंड fx दैट इज 1/2 प्लस आपका k है 0.2 एंड fy हमें मिला है यहाँ पर 1/2, देन प्लस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर देखो ये h² है और ये fxx है, तो -0.1 का स्क्वायर इंटू fxx, इसकी वैल्यू क्या मिली है हमें यहाँ पर -1/2, ओके। देन प्लस 2h इंटू k यानी कि -0.1 इंटू 0.2 fxy यहाँ पर है दिस -1/4 प्लस k² यानी कि 0.2 का होल स्क्वायर एंड fyy हमें यहाँ पर मिला है -1/2, ओके। और इसे अब हमें आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/4, अब ये माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो 0.1/2 प्लस 0.2/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, देन -0.1 का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा और 0.1 इंटू 0.1 यानी कि ये हो जाएगा 0.01 और ये है इंटू -1/2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है 0.1 इंटू 0.2 दैट इज -0.0.2,
सो ये हो जाएगा 2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.02 हम लिख सकते हैं इंटू 1/4 प्लस 0.2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 0.04 और इंटू माइनस 1/2 प्लस सो ऑन। बस आगे इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। 5/4 माइनस 0.05 प्लस 0.1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 0.05 this will be minus, then here plus 2 to the 4 0.01 then minus 0.02 ओके प्लस सो ऑन। इससे आगे आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस सो यहाँ पर जब हम आगे ये सारे कैलकुलेशंस करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ है इनका फाइनल आंसर आता है -0.0425 एंड ये जो 5/4 है इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये वैल्यूज रेडियन में होगी एंड देन सब्ट्रैक्ट, सो दैट विल बी द फाइनल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन टू यू एट 0.9 and 1.2. So I hope how we are going to use the Taylor series expansion to find the approximate value of function at given point. Thank you for watching this video. If you like the video, don't forget to subscribe it. Thank you.